اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اس بچی کو اپنے نپلز کی طرف یہ شخص لے کے آیا کہ جی اس بچی کے ساتھ 10 سال تک متواتر یہ شخص ایسی حرکتیں کرتا رہا. اعظم اکثیر صاحب تو اپنے اوپر بچے کو لٹایا کرتے تھے, تو حاجی شریف صاحب جو تھے وہ بذات خود نوجوانوں کے نیچے لیٹا کرتے. قادیانی مباحثین کے اندر اس قدر احمقانہ قسم کا جنون دیکھا ہے. ان کی بچی اگر کسی خلیفہ یا جماعت کے عہدیدار پر الزام لگا دے, اپنی بچی کو مجرم ثابت کر دیں گے اپنی جماعت کو بچانے. یہ ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. آپ کسی طور پہ بھی ان پہ اعتبار نہیں کر سکتے. کہ ایک اور احمدی درندہ کو درندہ ہی کہا جائے, جو کہ میرے خیال میں یہ لفظ اس کی ذہنی حالت کو ٹھیک طریقے سے بیان تو نہیں کرتا, ناکافی ہے, لیکن اب میں کیا کروں, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے اس کو مونسٹر یا ایک درندہ یا بھیڑیا کہنے کے علاوہ. آج اس منحوس شخص کا ذکر ہم کر رہے ہیں, یہ جی احمدی پیڈوفائل جیلڈ فور سیکشولی ابیوزنگ 4 years old innocent girl. صرف اور صرف 4 سال کی تھی وہ بیچاری معصوم بچی جب اس منحوس شخص نے اسے اپنے ظلم و بربریت کا نشانہ بنانا شروع کیا, اور یہ ایک ڈیکیڈ تک تقریباً یہ حرکت کرتا رہا, جس کے بعد آخر وہ بچی جب بیچاری بڑی ہوئی, وہ پھر پورا واقعہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے رپورٹ ہوا اور کس طرح سے یہ پکڑا گیا اور اس کو کیا سزا ہوئی. یہ احمدیت کا چہرہ یہ آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں. اتنی تکلیف دہ ہے کہ اس کا یہاں بتانا مطلب کسی بھی انسان کے لیے میرے نزدیک جو بات ہے, جو تھوڑا سا بھی انسانیت کا درد رکھتا ہے, اس کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال اپنے اوپر جبر کر کے دل پہ پتھر رکھ کے کچھ تفصیلات شیئر کریں گے. یہ ایک اپنی طرف سے وہ اپنی ندامت اور خفت کو مٹانے کے لیے یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ جی اچھا اس نے بھی تو ایسے کیا ہے, ہم نے کر لیا تو کیا بات ہے. بہت سے جہاں فون کالز اور ای میلز آئیں مجھے, وہاں پہ مطلب آپ حیران ہوں گے کہ مجھے ایسے فون کالز بھی آئے اور ایسی انفارمیشن بھی آئی, اور بعض آپ بلیو نہیں کرو گے, دس آئی ٹیل یو فاروق, کہ بعض وکٹمز جو ہیں اس وقت مطلب ان کی عمریں جو ہیں بعض میری ایج کے پہنچے ہوئے لوگ ہیں, مطلب سے 50 سال سے لے کے 70 سال تک کے لوگ. آپ کے زیتون چینل نے اور پروگرام نے ان کو اتنا انسپائر کیا, ان کے ضمیر کو اتنا جھنجھوڑا, ان کو اتنا حوصلہ دیا اس پروگرام نے کہ وہ انہوں نے کہا ہم خاموشی توڑتے ہیں. اور وہ وکٹمز جو ہیں اس وقت اپنی اس ڈھلتی عمر میں آ کے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے. اب ظاہر ہے ان کی آئی ڈیز تو میں ڈسکلوز نہیں کروں گا, نام نہیں بتاؤں گا. پھر بعض ایسے لوگ جن کے علم میں ایسے واقعات تھے, ان لوگوں کے فون آئے کہ دیکھیں جی جب ہم مسجد میں جاتے تھے, جب ہم کسی عہدیدار سے ملتے تھے, جب ہم کسی مربی صاحب سے ملتے تھے تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے یا کسی کے ساتھ کیا کرتے تھے. وہ انفارمیشنز میں احمدیوں کے اس جو ایک صرف جواز مطلب برائے جواز کہہ لیں کہ میں مان لوں گا ان کی بات کہ جی ٹھیک ہے وہ دوسروں میں بھی برے ہیں, ہم میں بھی برے ہیں, لیکن میرے لیے یہ چیز ماننی یا سمجھنی بہت مشکل ہے کہ جب آپ دعویٰ رکھتے ہوں کہ اس وقت خطۂ ارض کے اوپر صرف اور صرف ایک ہی جماعت ہے جسے جماعت احمدیہ کہا جاتا ہے, گو کہ میں اسے کلٹ کہتا ہوں لیکن چونکہ مطلب میں ان کی زبانی بات کر رہا ہوں, تو صرف ایک جماعت احمدیہ ہی ہے جس کے اندر کوئی برائی نہیں پائی جاتی, اور وہ اتنی نیک اور پارسا, اور ہمارے اندر خلافت کا نظام ہے, فلاں چیز ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو وہ جو آپ کے خلیفہ صاحب ہیں جن کو جو نمائندہ خدا بنتے ہیں, اصل اسلام کے وارث بنتے ہیں, اصل اسلام کے ریپرزینٹیٹیو نمائندہ بنتے ہیں, لیکن انہیں اسلام کا کوئی علم نہیں ہے, قطعی طور پہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے. میری طرح انہیں قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا. اگر وہ جسارت کر لیں, جو کہ وہ کرتے رہتے ہیں ہر ہفتے جمعہ کے روز خطبہ دینے کے لیے وہ جسارت کرتے ہیں, تو میری طرح وہ بھی قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے, حتیٰ کہ اردو بھی ٹھیک نہیں پڑھ سکتے وہ. تو ان کے پاس یہ دعویٰ رکھتے ہوئے کہ ہم ایک انتہائی اسلام پہ پابند, برائیوں سے پاک, اور اس وقت اس خطۂ ارض پہ 1.5 ارب مسلمانوں کے میں صرف ہم ہی یہ امتیاز رکھتے ہیں کہ ہم میں کوئی برائی نہیں, اور ہماری اصلاح جو ہے وہ موصوف جہانی غلام قادیانی صاحب کر کے ہوئے ہیں, اور ہم نیک آپ کے سامنے. تو ان کے یہ کردار
जिंदा इनके घरों के अंदर मौजूद है। ये शख्स सईद शाह, जिसने अपनी इब्तदा, इस बदबख्त शख्स ने एक 4 साल बच्ची को अपने ऊपर लिटा के अपने निपल्स, जैसे माँ ब्रेस्ट फीडिंग, माँ जैसे बच्चों को दूध पिलाती है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उस बच्ची को अपने निपल्स की तरफ ये शख्स लेके आया कि जी ये लो, वहां से इसने इब्तदा की। उसके बाद ये कहा गया, यकीन करें इतनी ग्राफिक ये है मामला कि मेरे लिए इस चीज को बयान करना किसी तौर पे मुमकिन नहीं है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी पोतियां, मतलब माई ग्रैंड चिल्ड्रंस, मतलब किस तरह से ये है कि मैं ज़हन के आगे ये चीज आती है तो बंदा झुंझला उठता है, कपकपी तारी हो जाती है इंसान के ऊपर कि ये चीज क्या है। लेकिन ये दरिंदा सिर्फ, ये बेहिस लोग, इन्हें कोई इस चीज का ख्याल नहीं। उस बच्ची के साथ 10 साल तक मतवातर ये शख्स ऐसी हरकतें करता रहा, और उस बच्ची ने, उसमें पूरी आप डिटेल जाके ले लेंगे, सारा कुछ उसके अंदर बयान हुआ है कि किस वक्त किस सन के अंदर वो इस काबिल हुई बच्ची, और उसने राब्ता किया, पुलिस को बताया, पुलिस ने इस बंदे को पकड़ा, चार्ज किया, और बड़े थोड़े अरसे के अंदर इसके केस का फैसला करके तो इसे बिहाइंड द बार्स जेल के अंदर फेंका, और सारी उम्र के लिए एक सेक्स ऑफेंडर के तौर पर रजिस्टर हुआ ये शख्स कि ये कभी भी किसी बच्चे के नजदीक नहीं, और पूरी वार्निंग के साथ ये जब बाहर भी आएगा जेल से तो उस तरह से ये जिंदगी गुजारेगा। लेकिन हैरत की बात यह है, अब ये देखें कि कौमें जो हैं, जो अपनी गलतियों को तस्लीम करती हैं, अपनी खामियों पे नजरसानी करती हैं, अपने अंदर अपनी बुराइयों को दूर करती हैं और अपनी सोसाइटी में उनको सामने लेके आती हैं, बताएं कि हमारे अंदर ये बुराइयां हैं, हमारे अंदर ये चीजें हैं, हमें इनसे बचना है, आप इन चीजों से बचो, वो सामने लेके आते हैं ताकि सोसाइटी जो है वो अवेयर हो। ये एक ऐसी, मतलब आप समझ लें कि जिसे जमात अहमदिया कहते हैं, ये एक ऐसे मतलब खास जहनी सोच की मालिक है कि वो कहते हैं नहीं, इसको छुपाओ, अपने लोगों को पता न चलने दो ताकि दूसरे लोग अंधेरे में मरते रहें, बजाय इसके कि वो जो बुराई है, वो जो गड़ा है, वो जो आपके अंदर एक ऐसी चीज है जो तबाही की तरफ लेके जा रही, उसको दूसरों को आगाह करें कि इस रास्ते पे ना जाना, इस रास्ते से अगर जाएंगे तो आप इस गड़े में नहीं, आप उसको छुपाते हैं। और इस पे मैं हैरान हूं, मैंने पिछली मरतबा भी जिक्र किया था कि ये जो यूके से ही मिर्जा मुजीब साहब जो बड़ा दर्द रखते हैं जमात का, और वो वीडियोस भी बनाते रहते हैं, वो मुझे कहते हैं कि जी इसको सत्तारी, अल्लाह ताला ने भी बुराइयों को छुपाने का कहा हुआ है दूसरों के। उन्हें अब बेचारों को यह नहीं पता कि ऐब के अंदर, बुराई के अंदर, जुर्म के अंदर कोई फर्क होता है, और ये चीजें जो होती हैं ये आप पे लाजिम आ जाती हैं कि आप इन चीजों का इजहार करें, इन चीजों के बारे में बताएं। लेकिन मैं क्या करूँ, वो उम्र के जिस हिस्से में है, मैं उम्र के हवाले से उनकी इज्जत एहतराम करता हूँ, लेकिन वो अफसोस के ज़हनी तौर पे अब बेचारे इस तरह ठीक वो जो बातें कर रहे हैं, मैं क्या कहूँ उनके बारे में। लेकिन ये जो चीज है, मसरूर ने ये जानते बूझते हुए कि इस शख्स के बारे में है, अपने लोगों को कुछ नहीं बताया, सिर्फ इसलिए कि जी मसीह मऊद की जो जमात है, मतलब मिर्जा गुलाम अहमद की जो जमात है, जिसे अहमदिया कहते हैं, वो बदनाम हो जाएगी, वो आ जाएगा कि बुरा। मसला ये है मसरूर मियां, मिर्जा गुलाम अहमद के अपने खानदान के अफराद, उनके अपने साहबजादे मिर्जा बशीरुद्दीन मामूद जो दूसरे जमात के खलीफा थे, उन पर बेशुमार इल्जामात हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि मैं उसका जिक्र करूं ना करूं, मैं उसे मानता हूं या नहीं मानता, बात कह रहा हूं कि इल्जामात हैं जो आपको पता है, आपके सामने है, जमात वाले जानते हैं। फिर फर्दर आप आगे चले आए, मिर्जा मसरूर साहब आपके कजन्स जो हैं, लुकमान जैसे, फरीद जैसे, दूसरे तीसरे, उनके भी सारे सिलसिले हैं। फिर मिर्जा गुलाम अहमद के ग्रैंड चिल्ड्रन के अंदर ये चीजें हैं, शाहद पाशा जैसे लोग, मेरा मतलब ये सारी चीजें जो है आपके खानदान के अंदर मौजूद हैं। आपने, ठीक है, अकीदत की वजह से अपने लोगों को जिस तरह से बेवकूफ बनाया हुआ है, जो कुछ उनकी आंखों पे पर्दा डाला हुआ है, लेकिन आप सोचें कि वेस्ट के अंदर जहां पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ के कलीसा ने, यहाँ की ईसाइयत ने अपने पादरियों को, आप तो अपने मुरब्बियों को नहीं करते, अपने पादरियों की बाकायदा तौर पे इन सारी हरकत को लाकर सामने रख दिया था पब्लिक के। आप क्यों नहीं रखते इन चीजों को? आप क्यों नहीं इनकी इस्लाह करते? यहाँ पे एक अर्ज करता चला जाऊं, जो पाकिस्तान के लोग हैं वो, और जो इस वक्त लंदन, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी 50-60 साल की उम्र के जायद लोग जो हैं, वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक इनके मुरब्बी, बल्कि यहाँ पे बड़ा MTA पे भी सारा सिलसिला उनका चले, उनका नाम है अक्सीर आजम, आजम अक्सीर, मुरब्बी आजम अक्सीर। ये जब गुजरांवाला में तैनात थे
आप अंदाजा करें, मतलब, और आप कांप उठेंगे कि ये आज़म अक्सीर साहब गुजरांवाला मस्जिद में, और जिस घर में रहते थे वो घर था एक हाजी शरीफ साहब का, उनसे उनके कमरे में ठहरा करते थे जाके, मतलब मस्जिद में इनको मिलती है जगह इनकी इबादतगाह में, लेकिन ये दोपहर को आराम करने के लिए उनके घर एक कमरा उन्होंने इनको दिया हुआ था, ठंडा सा जाते। तो ये अपने साथ कोई ना कोई एक अहमदी तिफल, अब तिफल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 14 साल तक की उम्र के इनके यहाँ वो इतफाल कहलाते हैं, तिफल बच्चा कहलाता है, फिर 14 से ऊपर जाके वो खादम बन जाता है कि नौजवान हो जाता है। तो ये अपने साथ एक तिफल को ले जाया करते थे, और तिफल को ले जाके ये हजरत क्या करते थे, अपने ऊपर लेटा लिया करते थे। अब ये उसका मुंह चूमते, उसे अपने साथ लगाते, स्क्वीज करते, दबाते, जो कुछ भी ये करते। अब ये शख्स इस दुनिया में नहीं है, वरना मैं इसे कहता कि बदबख्त शख्स, तुम्हारे जो विक्टिम हैं वो क्या अपने ऊपर खराशें लेकर, क्या अपने ऊपर दाग लेकर, क्या अपने दुख लेकर, किस तरह से इस वक्त वो जी रहे हैं, उनकी उम्रें क्या हो चुकी हैं, उनके बाल सफेद हो चुके हैं उन लोगों, और वो इस चीज के साथ कि हमारे साथ बचपन में क्या हुआ और किसने किया। और ऑन टॉप ऑफ दैट, जो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, कि वो जो हाजी शरीफ साहब थे वो भी एक गंदी आदत में मुब्तला थे। ये तो आज़म अक्सीर साहब तो अपने ऊपर बच्चे को लटाया करते थे, तो हाजी शरीफ साहब जो थे वो बजाते खुद नौजवानों के नीचे लेटा करते। आप अंदाजा करें कि जिस, मतलब सोसाइटी के अंदर, जिस जमात के अंदर ये आदात पाई जाती हैं, ये चीजें, ये हरकतें पाई जाती हैं, आप किस तरह उन्हें कह सकते हैं कि जी हम जैसे पाक साफ नेक लोग। और फिर बड़ी मजे की बात यह है, और वो हाजी शरीफ साहब भी इस दुनिया से जा चुके हुए हैं, ये आज़म अक्सीर भी, और भी बाकी ये सारे जिस तरह पाशा वगैरह जा चुके हैं। उस हालत ये है कि इनको फिर आप अपने बिजली मकबरे में जाके अपनी मतलब वो सो कॉल्ड वो जो जन्नत जिसे बजुबाने अवाम कहा जाता है, कि आप अपने उस बजती मकबरा में दफन करते हैं, और वो जिसके बारे में आपने इतनी शराइत लगा रखी हैं, ये सारे सिलसिले लगा रखे हुए हैं कि जी ये ऐसे है वैसे है, ये इस अहमदिया जो दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम बड़े नेक पासा हैं, यकीन कीजिए ये किसी दूसरे प्लेनेट से आए हुए लोग नहीं हैं, ये भी इसी सोसाइटी, इसी मुआशरे के लोग हैं। अगर मुसलमानों के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि मुसलमान जो हैं वो किसी चीज को डिनाई करते हो, या उनको ना, उनके तो वीडियोस वगैरह और उनकी बातें, उनकी खबरें अखबारों के अंदर भी आती हैं, चलती हैं, ये सारा कुछ उस पर वो काबू पाते हैं, उसकी वो दुरुस्तगी करते हैं, नहीं करते, वो उनका मामला। लेकिन अगर मैं ये समझ लूं कि जी आपके इल्म में नहीं ये बातें आई, ना कोई लेके आया, तो आपकी क़यादत, आपकी फहम फरासत और आपकी गवर्नेंस पे मैं आगे कोई लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, आप खुद समझ सकते हैं कि क्या है। अब जब आपके इल्म में आ गया, जबकि मुझे पता है आपके इल्म में है, तो आपको कुछ थोड़ी सी अपने आईने के सामने जरा खड़े हो जाएं और देखें कि जी मैं सुबह शाम झूठ बोलता हूँ कि नहीं जी हम बड़े नेक हैं, हम बड़े साफ हैं, हमें कोई बुराई नहीं है, हम अच्छे ही हैं, अच्छे ही हैं। मतलब किस दिलेरी से आप दुनिया के सामने ये चीजें रखते हैं। ये जितनी मैंने आपसे अर्ज की हैं, अब वो आज़म अक्सीर साहब, वो हाजी शरीफ साहब, जिन नौजवानों को पकड़ के बहला फुसला के, या जैसे भी उन्होंने उनके साथ ये किया और अपनी तसल्ली करवाया करते थे, वो आज जिंदा हैं। और आप ही के मुल्कों के अंदर, कोई बेल्जियम में अंदर है, कोई स्विट्जरलैंड में है वो शख्स, और कोई यूके में इस वक्त उनके हैं, मतलब बाकायदा तौर पे। और मेरे पास मजे की बात है उनके नाम भी हैं, लेकिन मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना ही इशारा काफी है, वो समझ गए, मतलब डेफिनेटली वो भी जिंदा हैं, वो लोग, उन्हें पता है। आप अंदाजा कर लें कि वो शरीफ साहब तो गए इस दुनिया से, बाकी जो दूसरे यहाँ पे हैं जिनके नाम, मतलब जो यहाँ मुल्कों के नाम मैंने लिए जिनमें रह रहे हैं, वो सोचें कि वो समझ रहे थे कि ये सिर्फ उनके और उस शरीफ साहब के दरमियान है, नहीं, आपके इन ताल्लुकात को और भी लोग जानते थे। और आपकी हैरानगी के लिए ये भी है कि आपके अपने अजीज व अकारब, माँ बाप, बहन भाई भी जानते हो सकते हैं। अब बहुत से अहमदी घराने अगर अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, मेरी गुजारिश होगी उनकी कि वो अपने बच्चों के बारे में खास तौर पे उनको देखें। मसरूर आपको नहीं कहेगा, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप अपने जवान बेटों, बेटियों, बच्चियों की ये नजर रखें कि ये कहाँ, इनको किसी के पास भी, इवन टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि आप अपनी बच्चियों को मसरूर के पास भी, मतलब अकेला जाने की इजाजत नहीं दे सकते। मेरी वीडियो पड़ी हुई है जो मैंने मसरूर के बारे में
एक माँ और बेटी के सिलसिले में दी थी, और मैं तफसीली जिक्र कर चुका हूँ कि किस तरह से इन्होंने मुझसे उस वीडियो को यूट्यूब से हटाने की क्या कुछ पापड़ नहीं बेले इन्होंने, क्या कुछ नहीं कहा इन्होंने। ये जो सिलसिले हैं, ये जो चीजें, आप किसी तौर पे भी इन पे एतबार नहीं कर सकते। ये इंसान के अंदर हैवानी ख्वाहिशात जो हैं, ये हैं, और ये किसी में भी आ सकती हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन ये अपने आप को कहे जाना कि नहीं हम में नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मसला इंसान के लिए ये है कि वो अपने को कंट्रोल करे, ये है उसकी शराफत, कि उसके अंदर ऐसी चीजें उभरे तो उनको कंट्रोल करे। जी, ये नाज़रीन, शेख साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, ये हाजी शरीफ साहब का वाकया है कि वो मौसूफ खुद नीचे लेट जाया करते थे। इससे मुझे मिर्जा साहब का वाकया याद आ गया कि वो भी गोया कि लोगों की चारपाइयों के नीचे लेट के ना वो देखा करते थे कि कौन क्या कर रहा है, किसकी गर्लफ्रेंड, किसका बॉयफ्रेंड, क्या सीन चल रहा है, फिर न्योग वगैरह लिखा करते थे। तो ये सिलसिला बड़ा पुराना पीछे से चला आ रहा है। वो कहते ने ना, वो किसी ने भी पूछो भी, मतलब कुछ किसी के घर में कोई एंटीक कोई चीज पड़ी हो या कोई किथों लई है जी सानू पिछों आई है। तो ये आदत इनको पीछे से ही आई है। इसकी ताजा मिसाल मिर्जा मसरूर साहब का वो वाकया जो हमने आपको बताया था कि इनके हमें बचपन के एक वो यारे गार मिल गए थे, जो जिन्होंने बताया था कि मसरूर साहब 100 रुपए की चुमियां दिया करते थे बेंच पे, और फिर खाना वाना, टाफियां, बिस्किट। तो पिछों चले आ रहे हैं। बहरहाल ये कादियानियों के पीछे पड़ गए हैं, उनको नंगा कर रहे हैं। मैं पूरी ईमानदारी से एक बात बताऊं जी, मैं पूरी ईमानदारी से बताऊं, अगर इस तरीके की खबरों को एक्सपोज करके भी एक शेख मुनकर हदीस है, मौलवियों के खिलाफ है, तो फिर मुझे नहीं पता कि मौलवियों के हक में इससे बेहतरीन प्रोग्राम क्या होता है। जितना कादियानियों ने मौलवियत को और हमजिन्स परस्ती को इन मौलवियों के साथ मंसूब किया है, और जितना नंगा किया है, एक शेख वो मुकदमा लड़ रहा है बेसिकली, और ज़ैतून एफएम लाइव वो मुकदमा लड़ रहा है कि जो मौलवियों को करना चाहिए था। अब इनको अपने फिरकों से फुर्सत हासिल नहीं है। नबी को इल्म गैब है कि नहीं है, नबी हाजिर नाजर है कि उल्लू के पट्ठो, और नबी की इताअत नहीं करते हैं, और लगे हैं गैब हैं कि हाजिर हैं, मौजूद हैं या गैर मौजूद हैं, मुजस्सम हैं, नूर हैं, कौन से हैं। मादरत के साथ फॉर माय हार्श वर्ड्स, मगर दिस इज अ रियलिटी। जब कौमों को जवाल, आपने कौमों को इकबाल कहता था ना, तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, ठीक है, कि शमशीर और सना अव्वल ताउस और बाब आखिर। मैं इस मसले के ऊपर भी बात करता हूं, सिर्फ मेरा मकसद ये था कि मैं नंगा करूं उन लोगों की जहनीत को, उन लोगों को कि जो लोग कहते हैं कि जी ज़ैतून एफएम लाइव जो है ना, ये जनाब मौलवियों के मुतलकन उलमा के खिलाफ है, और ये चीजें, ये वो मुकदमा है जो हम पेश कर रहे हैं। कादियानियत के चेहरे को नंगा कर रहे हैं, और जो इनका मकरू चेहरा है, आम अहमदी की बात नहीं कर रहा मैं, आम कादियानी और मरज़ई की बात नहीं कर रहा, मगर ये लोग जो एक तस्सुर आपको दिए बैठे हैं, उस चीज को नंगा किया जा रहा है, उस चीज को एक्सपोज किया जा रहा है कि भाई आपको दूध के धुले नहीं है। और फिर एक चीज, दूसरी चीज मैं जो कहना चाहता हूं इस हवाले से, वो ये है कि फर्क क्या है फिर, मुझे समझाएं, वो खत्ते इम्तियाज क्या है, ये खत्ते इम्तियाज क्या है, फर्क क्या है। क्यों मैं ये कह रहा हूं, शेख साहब, ज़ैनब बेचारी मरहुमा का वाकया आया, कसूर की लड़की थी जी, इन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया, अजाब डाल दिया, और पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम के ऊपर अजाब डाल दिया। इन्होंने ये कहा जी पाकिस्तानी कौम की हालत जो है ना इस वक्त वो ये है कि इन्होंने जनाब मर्जियों को काफिर करार दिया और मिर्जा साहब का इनकार किया। इनके अंदर ये बदकारी और फहाशी इसलिए है कि इन्होंने मिर्जा साहब का इनकार किया। ये मैं आम अहमदी से पूछता हूँ, यार इनका क्या करना है जो आपके अंदर गंद मचाए हुए हैं, जिनके भेड़िए और जो काले रंग रलियां और गल गपाड़ा कर रहे हैं, और कोई चारपाई नीचे डंडा फेर रहा है, कोई चारपाई के ऊपर डंडा फेर रहा है, कोई कमरे के पीछे घुसा हुआ है, कोई दरवाजे के अंदर छुपा हुआ है। इनका क्या करना है ये आपकी अहमदियत के अंदर जो लोग हैं। ये तो आपके बकौल 14वीं सदी के मौलवी भी नहीं, ये तो आपके बकौल बंदर सूर खंजीर भी नहीं, ये आपके नजदीक आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक भी नहीं। इन्होंने मिर्जा साहब पर ईमान भी रखा है, ये मिर्जा साहब को नबी वली महदी मऊ जो भी आप मानते हैं, ये जनाब एक जमात के अंडर भी हैं, ये एक खलीफा के अंडर भी हैं, ये एक मुनज़्ज़म जमात और फिरका नाजिया से भी ताल्लुक रखते हैं। इनके अंदर ये गंद क्यों है, मेरा ये सवाल है एक आम अहमदी से। अगर किसी ने ये जवाब दिया, और खलीफा भी मौजूद है, अल्लाह के नुमाइंदा, बिल्कुल खलीफा भी मौजूद है। अगर किसी अहमदी ने ये जवाब दिया कि जनाब ये इंसानों का मुआशरा है ना, ये तो हर जगह पर, तो मुंह बंद करो, फिर तुम्हारे पास सौदा बेचने के लिए मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर दूसरा मजहब तो ये कहता है, हर दूसरा फिरका तो ये कहता है। तुम्हारे पास वो क्या है जो तुम कहते हो कि दूसरे के पास नहीं, तब मेरे पास आना। अगर आमिर हक को कादियानी बनाना है ना, अगर एक शेख को वापस लेकर जाना है, और अगर फारूक को कादियानी बनाना है, तो हमें कुछ ऐसा दो जो पहले नहीं। हम तो इस उसूल पर चलने वाले हैं। अगर वही झुंझुना लेकर आना है और वही
टीटो पार्टी आपने भी करनी है, जो दूसरे कर रहे हैं, तो सॉरी, ये सौदा यहां नहीं बिकेगा मादरत के साथ, और ये कोई अक्लमंद बंदा नहीं लेगा। कोई बेवकूफ अहमदी इस सारे सौदे को खरीद जाए तो खरीद जाए, मगर एक बाशऊर और बागैरत अहमदी कभी भी इस चीज के ऊपर बिकेगा नहीं। हाँ, कोई और मसले हों उसके यहां तो हों, मगर इस चीज के ऊपर वो कभी भी नहीं आएगा। कि अब एक लम्हा फिक्रिया है, दो रस्ते आपके पास बनते हैं। एक तो ये बनते हैं कि कादियानी जमात अब उस सहर को और उस हसर को और उस खुसूसियत को अपने ऊपर से उतार कर फेंके कि हम वो चुनीदा और चूजन पीपल हैं कि जिनके अंदर जो है ना वो परफेक्शन आपको नजर आए। या तो इस चोले और लिबादे को साइड में फेंक दो, तब हमारे साथ आकर बात करो, ठीक है। या ये है कि वो परफेक्शन पैदा करो जिस इम्परफेक्शन की वजह से आपने गलत जमात बनाई थी। अगर किसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी के आने के इम्कान पर आप एक पूरी जमात खड़ी कर देते हैं और उस जमात का भी वही हाल है और आपके बुलंद बांग दावे हैं, तो मादरत के साथ आपको फिर रास्ता दोबारा देखने की जरूरत है। कहीं आपको चिकनी चोपड़ी बातें कर कर मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तेफाक से अलहदा तो नहीं कर दिया गया? कहीं आपको ये कहकर कि हमारा नया नबी है, हमारी नई शरीयत, हमारी नई किताबें, हमारा नया खलीफा, नई जमात, पूरा एक हमारा नया डेकोरम, क्या आपको हकीकी इस्लाम और सही इस्लाम से दूर तो नहीं कर दिया गया? ये लम्हा फिक्रिया है अहमदी दोस्तों आपके लिए। बाकी ये जिस बंदे ने किया है शेख साहब, ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस बच्ची का भी है, जो भी वाकया है, क्या करें अब ये इस तरह के दरिंदों को और जो पेडोफाइल जो हैं इनके साथ तो दुनिया के अंदर तो जो होगा होगा, आखिरत के अंदर ही इनका सारा मामला हो सकते हैं। बस अल्लाह ताला माफ फरमाए। और ये पूरी एक साइकी है, नफ्सियात है। सिर्फ एक बात कर ले तो मादरत के साथ, पेडोफाइल जो है ये एक नफ्सियात है। क्योंकि शेख साहब तो वेस्ट के अंदर रहते हैं, इसके ऊपर बाकायदा नफ्सियात के ऊपर स्टडी वहां की गई है, थीसिस लिखे जाते हैं, इनके ऊपर रिसर्च सेंटर्स बनाए गए हैं और इनको पेशेंट के तौर पर लिया जाता है। मोर लाइक क्रिमिनल से रादर दे वुड कॉल इट पेशेंट। जो पेडोफाइल है ये एक पेशेंट होता है, ये एक साइकी है। ये कैसे जन्म लेता है? ये जन्म लेता है 3-4 वजूहात हैं इसके पीछे। एक ये है कि आपका खुद का बचपन जो है वो इस तरह के एग्रेशन से, एजिटेशन से गुजरा हुआ हो, इस तरह के एक्सपीरियंस से गुजरा हुआ हो। नंबर 2, या फिर आपकी जो सोसाइटी है उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रेस हो, उसके अंदर इतनी ज्यादा आपने पाबंदियां आयद की हों, इतनी ज्यादा शिद्दत आयद की हो, या इतना ज्यादा रंग ओढ़ा हो कि जो हकीकत से निकलकर जज्बात पर मबनी हो जाए। ऐसे माहौल से फिर वो ये समझे कि गैर इंसानी और हत्ता कि मैं कहूँ गैर हैवानी किस्म के जज्बात उभर और जिबिल्लतें उभर कर सामने आती हैं। ये इंसानी भी नहीं है, ये गैर हैवानी है, यानी जानवर भी इस तरह नहीं करते, ठीक है। मैं चूंकि बिल्लियों का शौकीन हूँ, बिल्ली होती है, बिल्ली छोटी सी जो उसको हीट अप होती है, ठीक है, वो जो बिल्ला होता है वो भी बकायदा उसके साथ मीट करने के लिए कम्युनिकेट करता है। अगर वो इजाजत देती है उसको और वो उसके साथ कंपेटेबल फील होता है तो वो फिर अपना उसके ऊपर दस्तदराजी करता है, ठीक है, वगरना जानवर भी नहीं करता। ये उनकी पूरी एक साइकी होती है मीट होने की। ये तो जानवरों से भी बदतर है। उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, ये तो जानवरों से भी बदतर है ये नफ्सियात। तो इनके लिए बकायदा एक अलहदा जो है वो जमात अहमदिया को मैं एक मुखलसाना मशवरा देता हूं, आपकी जमात के अंदर ये कार्रवाइयां बड़ी तेजी और सरत इख्तियार कर गई हैं। मुझे नहीं पता कि ये मिर्जा मसरूर की सोहबत का नतीजा है या ये मिर्जा गुलाम कादियानी साहब की कुतुब का असर है, मुझे मेरे इल्म में नहीं है, मगर जो भी है इसके ऊपर एक कमेटी बैठे। जमात अहमदिया के लोगों को चाहिए कि इस पर प्रेशर करें, खलीफा साहब को कहें कि एक खुतबा अब इस चीज के ऊपर दें कि जमात अहमदिया के अंदर भी 14वीं सदी के खंजीर बंदर सुअर घुस चुके हैं, इनका क्या करना है। अब जमात अहमदिया के मिंबर और महराब से ये बात होनी शुरू होनी चाहिए, तब जाकर हम समझेंगे कि जमात अहमदिया वाकई हकीकी मानों के अंदर इस्लाह की तलबगार है, अगर हम इसको ड्रामा और ढकोसला समझेंगे चंदा इकट्ठा करने के लिए। एक चीज आपने बड़ी अच्छी बात की तरफ एक जिक्र कर दिया, इसमें मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ये एक्चुअली एक बीमारी है और ये बीमारी जो है मिर्जा साहब के दौर से है। ये चीज मैं आपसे अर्ज कर दूं। नंबर 1, अब जो हालत है, अब ये कैंसर की तरह अहमदिया कल्ट के अंदर फैल चुकी है। कैंसर की तरह ये अपनी जो है जड़ें बड़ी मजबूत कर चुकी हुई है। इनकी बच्चियां, टू बी ऑनेस्ट विद यू, 80% अगर ये जुर्रत कर लें, जो कि वेस्ट के अंदर की बच्चियां जुर्रत कर लेंगी, बच्चे भी जुर्रत कर लेंगे, लेकिन चूंकि इनकी ज्यादातर तादाद पाकिस्तान के अंदर है, वहां जरा मुंह खोलना मुश्किल है। यहाँ पे आप पूछ लेंगी, आपको 80% बच्चियां बताएंगी कि हाँ, हमें बचपन में अपने चचा की तरफ से, मामू की तरफ से, कजन की तरफ से हमें दस्तराजी की कोशिश की गई। 80% इनके अंदर ये चीज है। ये लाख इनकार करें, ये लाख आंखें छुपाएं, ये चीज इनके अंदर। और ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूं ना, यकीन करें,
मैं पब्लिकली बात कर रहा हूँ, they can challenge me, they can take me to the court. अहमदी खवातीन जो विक्टिम हैं, मेरे पास वो नाम हैं जो इस वक्त अहमदिया सोसाइटी ही नहीं, ये ज़हन में रखिएगा, अहमदी सोसाइटी ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर भी वो बड़ा मुकाम रखते हैं। वो बच्ची को अपनी गोद में बिठाते रहे हैं और अपनी तस्कीन करते रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब आप कहाँ जाएंगे, आप किधर भागेंगे? वो मैंने अर्ज किया ना कि ये जिसे अपना फजल और अपनी तरक्की करार दे रहे हैं ना जी, पाकिस्तान ने हमें गैर मुस्लिम करार दिया और देख लें उसके बदले में अल्लाह ताला ने हमें क्या अता किया। अल्लाह ताला ने आपके मुंह के ऊपर वो तमाचा मारा है कि आपके बच्चे आज बोल उठे हैं कि हमारे साथ क्या होता रहा है। ये है आपका इनाम, ये है आपको जो चीज मिली है। वो औरतें जो अब माएँ बन चुकी हैं, नानियां दादियां बन चुकी हैं, वो यहाँ के प्रोफेसर्स की, यहाँ के शोरा की, जिन्हें आप बड़ी इज्जत से बुलाते हैं अपनी महफिलों में, वो बताती हैं कि इस कमबख्त ने या मेरे साथ क्या होता रहा है। अब ऑब्वियसली आई एम कमिटेड कि आई एम नॉट गोइंग टू डिक्लेयर देयर आईडी, लेकिन उस बदबख्त को, जो कि एक नहीं है, ये बहुत से, उन सबको फौरी तौर पे उनके कान खड़े हो गए कि ये किसकी तरफ इशारा हो रहा है, ये तो हमारी बात हो। इनकी सोसाइटी के अंदर कोई बच्चा महफूज नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि मुसलमानों की बातें जो हैं, मैं बल्कि उनको इस चीज के बारे में ये कहूंगा कि वो बिल्कुल बाहर लेके आ गए अपनी बुराइयां, अपनी खामियां, अपनी नालायकियां। वो लोग हिम्मत की, उन्होंने उसको पब्लिक के सामने डाल दिया। यकीन करें ये तरीका इलाज होता है कि जब आप एक चीज को सामने ले आते हैं तो आपको बहुत से ऐसे रास्ते मिल जाते हैं कि किस तरह काबू में किया जाए। लेकिन जब आप इस कल्ट की तरह छुपाते हैं तो आप साफ नहीं होते, बल्कि आप इसको मजीद फर्टिलाइज कर रहे होते हैं। ये मसरूर मियाँ, चूंकि तुम्हारा अपना दामन साफ नहीं है, चूंकि तुम्हारा अपना घराना साफ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर थोड़ी सी भी इंसानियत, थोड़ी सी भी गैरत, थोड़ा सा भी इंसानी हमदर्दी का जज्बा तुम्हारे अंदर अगर रमक भी बाकी है, तो इस इशू को अपने अंदर संजीदगी से उठाओ और इसका कोई बंदोबस्त करो, जैसे आमिर ने इस चीज की तरफ इशारा किया। हमें, चलो हमारे लिए, हम जो मुसलमान हैं, हमारे पास तो ना कोई खलीफा है, ना कोई इमाम है, ना कोई एक जमात है, ठीक है ना। हम अपना दुखड़ा रोएं तो किसके आगे जाके रोएं? हम शिकवा करें तो किससे? हमने सोचा कि हाकिम से करेंगे शिकायत तेरी, मगर कम बखत वो भी तेरा चाहने वाला निकला। हमारे पास तो कोई हाकिम भी नहीं, ना कोई चाहने वाला है, ना जिससे शिकवा शिकायत करें, ना जिसका घंटा बजे। और भाई आपके पास तो एक बनस्पति किस्म का खलीफा है, क्यों नहीं उसके घर के बाहर जाकर जुलूस निकालते? क्यों प्ले कार्ड्स नहीं उठाकर कहते हमारे बच्चों की हिफाजत करो? हमसे चंदा लेते हो, कम से कम उस चंदे को इसी सिक्योरिटी पर लगा दो। आमिर जो अपनी हिफाजत नहीं कर सका वो इनके बच्चों की क्या करे? क्या बातें कर रहे हो? तो ये सारी सूरत हाल है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक। तो ये चीज है कि चलो आपके पास तो खलीफा है ना, आप तो इस चीज को एक्टिव करो। एक बात ये थी बस। फारूक भाई आप क्या कहते हैं? जज़ाकल्लाह। दूसरा मैं ये अर्ज कर रहा था कि अभी किसी दोस्त ने नीचे कमेंट किया था कि जैसा कादियानी इमाम वैसी ही उम्मत, अफसोस अफसोस। हाँ ये रहा, यही कमेंट। मिर्जा साहब, अब किताबों का जिक्र किया था ना आपने, मिर्जा साहब अपनी किताबों के अंदर जिस तरह से, शेख साहब आपको पता है, नाजरीन को भी पता है, नमाज के अंदर खुशू खुजू की मिसाल दे रहे हैं। किस 24 घंटे उस बंदे के ज़हन पे जो है ना वो यही हवस सवार रहती थी, औरतें, सेक्स, लस्ट, बस दैट्स इट, यही सब कुछ। तो अब वही तालीमात लिख के गए हैं वो न्योग के अंदर, जिस तरह ऐसे जैसे चारपाई के नीचे बैठ के देख रहे हो कि भाई क्या सीन चल रहा है, ये लिख लिख के गए हैं। इस लिटरेचर को भी निकालना पड़ेगा आपको, इस गंद को भी निकालें, इसका इनकार करें। यही पढ़ पढ़ के मुरब्बी बनते रहेंगे तो फिर यही कुछ करेंगे। अब वो जामिया अहमदिया में शेख साहब 5 साल जब पढ़ेगा, यही किताबें पढ़ेगा और खुशू में वो मजे लेने की कोशिश करेगा, तो बाहर आके वो क्या गुल खिलाएगा? यही कुछ करेगा। बहरहाल जी, कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। पहले शरोज मिर्जा साहब, उसके बाद अली भाई, उसके बाद AR खान साहब, इसी तरतीब से लेंगे सबको। एक छोटी सी सिर्फ ये चीज के, ये जो न्यूज हमने दिखाई है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम प्रोग्राम के बाद या एंड में डलवा देंगे। ये बहरहाल आपके सामने है ये पूरा आर्टिकल, और इसकी ओरिजिनल जहां से हमने ये न्यूज ली है उसका लिंक भी नीचे दे दिया है। अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये सोर्स, न्यूज सोर्स जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ओरिजिनल भी मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर जो अल्फाज हैं और जो वाकयात हैं वो वाकई यहाँ पढ़ने के काबिल नहीं है, और हम चाहें भी तो नहीं बोल सकते। यूट्यूब की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसा गंद इस बंदे ने
किया हुआ है कि अल अमान वाला फीस, हम उसको यहाँ पे खुले लफ्जों में बता नहीं सकते। शेख साहब ने थोड़ा सा इशारा दे दिया, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैंने बताया मेरे भी बच्चे हैं, मुझे बहुत दुख पहुंचा, और मेरे दूसरे भी रिश्तेदार और सबके बच्चे हैं। मैं कुछ पॉइंट्स आपको कहना चाहता हूँ। मगरिब में, चाहे वो बरतानिया है, यूरोप है, कनाडा है, वेस्टर्न कंट्रीज में, कोई भी बच्चों के साथ अगर डील करता है उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ती है। आपको शायद मालूम होगा कि वो बच्चों के करीब जा सकते हैं कि नहीं ये लोग। ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है स्कूल्स वगैरह में, इवन हाई स्कूल्स तक में, कॉलेजेस में। अब यहाँ पे ये इत्फालों के प्रोग्राम करते, लजना के प्रोग्राम करते, उसमें ये सारे इस किस्म के प्रीडेटर्स जो लोग हैं ये सारे घुसे हुए होते हैं। ठीक है, उनकी कौन सी वेटिंग होती है? उनको किसने भाई वेट करके आगे किया हुआ है कि वो ऐसे बच्चों के साथ डील कर सके? अब ये तो इन्होंने पर्दा छुपा के रखना है। अब इन्होंने तो वही काम करना है ना, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे ऊपर बैठे हुए हैं वैसे ही सारे लोग साथ साथ हैं इनके। भाई ये खानदानी लोग हैं, वो खानदानी काम कर रहे हैं 125 साल से। आप शेख साहब क्यों इनको अक्ल दिला रहे हैं और क्यों झंझोड़ रहे हैं इन अहमदियों को? ये तो सोए हुए हैं, इनको सोया रहने दे। और उन्होंने भी पाबंदी सजाएं इसलिए नहीं देनी। देखें जी, इत्फाल इनके छोड़ के चले जाएंगे, खुदाम छोड़ के चले जाएंगे, लजनात छोड़ के चली जाएंगी, नासरात छोड़ के चली जाएंगी। चंदे कौन देगा? इनका 125 साल का बिजनेस है भैया, आप क्यों खत्म कर रहे हैं इनको? बहुत शुक्रिया अली भाई। एक यहाँ पे ये हमारे अली भाई ने जो मशवरा दिया ना, ये चाहिए इनको। वैसे कोई हिम्मत करके ना कोई रिपोर्ट करें वहां पे, इनको कोई कॉल शाल खड़काएं 911 पे कि जी ये इनका चेक तो करें जरा। ये जो लजना वगैरह के प्रोग्राम और इत्तफाल के होते हैं, इसमें जो ये हमारे सरों पे चढ़ के बैठे होते हैं, खासतौर पर खुद खलीफा साहब, ये जिस तरह बच्चियों को देख रहे होते हैं, हरासमेंट के जुमरे में आता है बच्चियों को, जिस तरह से ये चस्के ले लेके सवाल कर रहे होते हैं। यार कोई कर दे, कोई विसल ब्लोअर बन जाए एक आधा, कोई शिकायत हल्की फुल्की सी कर दे इनकी, फिर देखा जाएगा जो होगा। सर मैं एक बात यहाँ से कर देता हूँ, शेख साहब इस बात की तस्दीक कर देंगे। मैंने कादियानी मुबायिन के अंदर इस कदर अहमकाना किस्म का जुनून देखा है, इनकी बच्ची अगर किसी खलीफा या जमात के ओहदेदार पर इल्जाम लगा दी, अपनी बच्ची को मुजरम साबित कर देंगे अपनी जमात को बचाने। ये ईमान का हिस्सा समझते हैं, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। ये शेख साहब तस्दीक, मैं से लोगों की नफ्सियात देखी है। जी शेख साहब आप तस्दीक कर दें, कर दें शेख साहब। तो ये ऐसे करेंगे कि ये जो कह रहे हैं ना, ये जो अली भाई बड़ी गहरी नफ्सियाती बात करके गए हैं, और शेख साहब समझ गए थे। शेख साहब ने इसीलिए उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि शेख साहब समझ गए थे। ये मैं आपको बताऊं, कभी वेस्ट के अंदर पुलिस ने आकर कोई इनसे इंक्वायरी करने की कोशिश की, इनको जमात की तरफ से एक खुफिया फोन आएगा, इन्होंने सारा मुद्दा बच्ची के ऊपर डाल देना। ठीक है, ये सारा मुद्दा बच्चे के ऊपर डाल देंगे। सारा मुद्दा जो है वो अपने घर की बीवी और अपनी बेटी के ऊपर डाल देंगे। ये वो जमात है, और ये डालकर सिर्फ डालेंगे नहीं, ये कहेंगे स्वाब का काम है। ये कहेंगे हमने बहुत बड़ा दिफा किया, हमने अपनी जमात को बदनामी से बचा लिया। उल्लू के मेरे फिर मुझे फिर कचीचियां चढ़। अब चूंकि अली ने बात की और आमिर ने बात कर दी, मैं बहुत अरसा तक यहाँ कनाडा के अंदर पुलिस के साथ, लॉयर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ काम करता रहा हूँ। यहाँ पे मतलब जो आप ये समझें कि जब ये आए थे अहमदी लोग शुरू में, मैं 80s की बात कर रहा हूँ, एज ए रेफ्यूजी, तो आप अंदाजा करें कि रेफ्यूजीज को मतलब टेम्परेरीली काम की इजाज़त मिलती थी ना, उसमें जिन कामों की इजाज़त नहीं मिलती थी उनमें स्कूल में, हॉस्पिटल में, और मतलब इस किस्म के जो बिजनेसेस थे वहां पे इजाजत नहीं मिलती थी इनको काम करने की, क्योंकि जब तक इनकी सिक्योरिटी पुलिस से बैकग्राउंड चेक ना हो जाए और बच्चों के बारे में ये चीज के महफूज नहीं है, जब इनका सोशल इंश्योरेंस नंबर परमानेंट इनको मिल जाता था तो फिर इनकी क्लियरेंस के साथ इनको जॉब मिलती, जो कि अभी तक खास तौर पे टीचर का या किसी लिहाज से हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के साथ, इवन इंटरप्रेटर्स जो है, जो तर्जुमान हैं, उनका भी सिक्योरिटी और बैकग्राउंड चेक होता है। ये यहाँ पे ये चीजें लाजिम हैं। अब अली ने जो बात की है वो बिल्कुल सही की है कि एक खादम, एक मैच्योर मतलब 18 साल से ऊपर बंदा जो है, जिस तरह वो अमेरिका वाला लेके उस बच्चे के साथ हुआ, कि वो बैठ जाते हैं अपने इत्फाल को लेके कि जी हम अपनी इजलास कर रहे हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो कानूनी लिहाज से अगर वो जो इजलास की सदारत कर रहा है, जो बड़ा है उन बच्चों में से,
अगर उसके पास सिक्योरिटी और पुलिस बैकग्राउंड क्लियरेंस नहीं है वो नहीं ले सकता। बिल्कुल ये बात सही है। जी और डेफिनेटली थैंक यू फॉर दी आपके ये मेंशन करना। I'll take care about I'll do something about that. Thank you जी। अब आप ये जो इंसान है ना, इंसान ना बाज़ औक़ात कुछ एतराज़ात के ऊपर अपने आप को तसल्ली दिए बैठा होता है। ये याद रखें, इंसानी नफ्सियात है ना जी। बाज़ इल्ज़ामात के नतीजे में उसने कुछ जवाब, एक्सक्यूज़ और बहाने हीले गढ़े होते हैं और वो घड़ कर उसने रखे होते हैं। कादियानियों के पास आप जितने, मैंने चूंकि इनसे बात भी की है, आप लोग भी माशाल्लाह सभी हम लोग जानते हैं, एक्सपीरियंस है इस मामले के अंदर। कादियानियों के यहाँ जितने इल्जामात हैं, चाहे वो मिर्जा साहब की शख्सियत से लेके हों या किसी एक आम अहमदी के किसी क़यामत तक किसी किरदार के ऊपर हों, इन्होंने उन तमाम इल्जामात के ऊपर जवाज, जस्टिफिकेशंस, एक्सक्यूजेस खड़ कर रखे होते हैं। इस वक्त भी आपको जो अहमदी कादियानी, ये बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स किसी नसीब के अंदर गैरत होगी किसी अहमदी के अंदर, तो वो ये बात, हमारा मकसद भी वही अहमदी है। जैतून एफएम लाइव के शेख साहब के, फारूक भाई के इस इशू को हाईलाइट करने का मकसद सिर्फ वो एक अहमदी है जो इस वक्त मेरी आवाज सुन रहा है, जिसके अंदर अल्लाह ने गैरत रखी है, ठीक है, वो एक जो मेरी बात सुन रहा होगा और अभी वो उसके अंदर दिल में कुछ हो रहा होगा कि यार मेरे को कैसे पता चल गया मेरे अंदर की दिल की बात, अल्लाह मुझे नहीं पता चली, क्योंकि ये इंसानी नफ्सियात है, सो बदीही, सो क्लियर, तो मुझे पता चल गया है कि तुम बदलना चाह रहे हो, ठीक है, तुम्हारे दिल के अंदर कुछ हो रहा है। अच्छा खैर, इन्होंने क्या एतराजात खड़े होते हैं, जरा उनका भी जिक्र कर लें, क्योंकि ये कोई अहमदी तो आया नहीं। हो सकता है कि मैं ये 3-4 एतराजात या हिले पेश करूं तो हो सकता है किसी कादियानी की गैरत जाग जाए, वो कहे यार आओ यार गल मैं भी करनी सी, मैं कर दे। ये तो आमिर को कैसे पता चल गया? पहला ये जवाब पता क्या तलाश करेंगे, ये कहेंगे ओ यार रेशो प्रोपोर्शनल कर लो, देखो ठीक है, आपके 5 बच्चे थे, आपके 4 बच्चे फेल हुए हैं, मेरे 5 बच्चे थे, मेरे 2 फेल हुए हैं, तो ज्यादा गंद किसके अंदर है? भैया आपके अंदर है। भाई हमारे यहाँ देखो ना जी, 10 साल में आप एक केस निकाल कर लेकर आए हो, आपके यहाँ तो हर दूसरे दिन केस होता है, तो अल्लाह के फजल से हम आप लोगों से बेहतर हैं। ये इस वक्त ये एक्सक्यूज अपने दिल के अंदर लेकर अहमदी हमारी बात सुन रहे हैं नीचे बैठे, ठीक है। फिर ये क्या कहेंगे ये जो आउटर लुक इन्होंने, ये जो एक्सटर्नल इन्होंने डिजाइन किया हुआ था कि जनाब ये परफेक्ट हैं, ये अंदर कहते हैं कि देखें जी, जैसे जैसे जमात अहमदिया बढ़ रही है ना, तो कुछ लोग आ रहे हैं वो मुखलिस नहीं है, कमजोर ईमान वाले हैं, वो जारी बात है, इंसानों का मुआशरा, तो वो कुछ ऐसा हो रहा है, अभी तरबियत की जरूरत है। तो हमारी बड़ी मसरूफियत, हम इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर, हम देखें, हम नाइजीरिया के अंदर एक नलका वहां लगा रहे हैं, उसका पंप भी टूटा हुआ है, तो 20,000 पाउंड का एक नलका हम वहां लगा रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम वो जो है ना, एक बंदा है अफ्रीका के अंदर, वो किसी गांव के अंदर, उसको जनाब हमने खजूरों का दरख्त लगा कर दिया है, और डोके ऊपर से गिरते हैं तो वो खाता है। हमने बड़ी खिदमत दुनिया की कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो और हम बड़े अजीबोगरीब किस्म के वहां स्कूल भी खोल रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये अब उन चीजों को फिर याद करवाएंगे। मैंने इसलिए एक छोटा सा क्लिप हमारा बड़ा ज़ैतून एफएम लाइव के ऊपर आया था, जिस वक्त इन्होंने वो विकीपीडिया के ऊपर इनके खलीफा साहब जो हैं बनास्पति, वो खलीफा ऑफ इस्लाम के तौर पर आए थे, गूगली खलीफा। उस वक्त गूगली खलीफा, हमारा एक क्लिप था गूगली खलीफा, जिसने नहीं देखा वो ज़ैतून एफएम पर सर्च कर ले, गूगली खलीफा, चंद सेकंड का क्लिप था, उसमें मैंने एक मिसाल दी थी। एक बंदर जो था उसको जंगल की बादशाहत मिल जाती है, ये इस्तिआरतन और मजाजी के तौर पर मैं कह रहा हूँ। तो लोग आकर उससे कंप्लेन करते हैं कि बंदर साहब हमारे ये मसले हैं, हमारे वो मसले हैं। तो बंदर कहता है छड़ मेरी आनियां जानियां वेख, ठीक है, छोड़ो अपने मसले मसाइल। जमात अहमदिया कादियानिया को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इन अखलाकी पसमानदगी, इन औसाफ की तनज़ुली, इस आदाब का कहत और फुकदान, इन मसाइल पर तज़किया और तत्हीर के ऊपर बात नहीं हो रही। सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है कि जनाब हमने नाइजीरिया के गांव के अंदर एक पंप लगा दिया है, सारे अहमदी नारा मारेंगे, अहमदियत जिंदाबाद, सच्चा इस्लाम जिंदाबाद। लो भाई, बढ़ गया तेल लगा के। अच्छा, कहेंगे जनाब हमने लंदन के अंदर एक मस्जिद के अंदर एक पंखा लगा दिया, एक पंखे का पर टूटा हुआ था, उसको हमने लगवा दिया। लो जी, सारे नीचे से नारा मारेंगे, अहमदियत जिंदाबाद, दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। किस किस्म की जमात और शऊर है आप लोगों का, माजरत के साथ। आमिर, मैं आपने जो पहले बात की ना, मैं जरा उसके थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ उसको। सिलसिला ये है कि आपका ये प्रोग्राम जो है ना, ख़ास तौर पे मतलब आप जो गुफ्तगू करते हैं दीनी हवाले से, मतलब कुरान और सुन्नत के हवाले से, इसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमारे फारूक साहब इस किस्म के सोशल मसाइल को लेके आते हैं और जो ख़बरों के अंदाज में हम लोग प्रोग्राम करते हैं, ये चीज़, इसका आप ये देख लें कि मेरे पास वो सहाबा की औलादें जो है ना, उनके फ़ोन कॉल्स, और ये इनकी नाम नेहाद सहाबा शेख साहब मिर्जा साहब के, हाँ खैर, मेरे दादा बनास्पति, मेरी दादी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ हैं। ताबी है, मैंने ताबी साबित किया हुआ शेख साहब को एक प्रोग्राम में, ताबी। तो मतलब ये कि ये जो है, ये एक्चुअली
جو میں نے اپنے ابھی گفتگو میں پہلے اس چیز کو ریفر کیا تھا کہ پاکستان سے یہ جو ہجرت اپنی ملاتے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پاکستان نے تو ہمیں اپنی طرف سے ختم کیا، باہر نکالا، یہ کیا وہ کیا، ہمیں کافر، لیکن ہم پہ بڑا فضل ہوا. وہ فضل ان کے گلے میں پڑ رہا ہے. یقین کریں 50% سے زائد لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اور ان کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے. وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. مجبوری کیا ہے؟ یہ دنیا کے ہر انسان کو مجبوری ہوتی ہے. یہ صرف جانوروں میں امتیاز ہے کہ جانور کا بچہ جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہی انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. نہ اسے زبان سیکھنے کی ضرورت آتی ہے، نہ اسے اپنے بچاؤ کے لیے کسی چیز کی، نہ اسے بھاگنے کے لیے. وہ خود انڈیپینڈنٹ قدرت کی طرف سے وہ پروگرامڈ ایسے ہے. یہ انسان کا بچہ ہے جسے بہت دیر تک ایک حد تک اس کو ڈیپینڈنٹ رہنا پڑتا ہے. تو یہ احمدیوں کی بھی مجبوری ہے. وہ بچے کہتے ہیں کہ ایز سون ایز جب ہم انڈیپینڈنٹ ہوں گے ہم اپنے فیصلے، اور وہ کر رہے ہیں. جو ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے وہ ان کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، جس طرح ان کے گھروں میں بیٹھ کے وہ اپنے سوال جواب کر رہے ہیں، آپ حیران ہوں گے. یہ میرے تک یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور وہ اتنی خوش کن ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن بعض اوقات میں اس کا اس لیے تھوڑا سا اظہار نہیں کرتا کہ ان کے بھی کان کھڑے ہو جائیں، کہیں گے جی اچھا اس طرف چل کے تربیت کریں، اس طرف زور دیں، جو کہ یہ بہت زیادہ دے رہے ہیں. آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر میں نے ایک فاروق شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ میں نے پوسٹیں لگائی سچے احمدی کی نشانیاں، اس پہ ہم کریں گے بھی انشاءاللہ پروگرام. اس پہ ابھی مطلب 2 اس کے باقی ہیں. مطلب اٹس اراؤنڈ 60 جو ابھی میں نے میرا خیال 30 کے قریب لگائی ہیں، وہ ابھی 30 باقی ہیں. وہ سلسلہ جو ہے کہ وہ سارا کچھ یہ فوری طور پہ ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے. یہ اس طرف توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے معاملات ہیں. ان کے اندر بہت بڑی تبدیلی. آپ یہ سوچ لیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان کی تعداد کی، میں نے اس میں ایک مینشن کر دی ہوئی ہے کہ آپ ان کے موسیان کو اس کا نمبر دیکھ لیں. یہ ابھی 2 لاکھ تک نہیں پہنچے، ابھی 2 لاکھ تک نہیں پہنچے، جبکہ مسرور نے آتے ہی یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ 100 سال جب 2008 ہوا کہ اس وقت تک ہماری آدھی جماعت جو ہے وہ مطلب وصیت کر چکی ہوئی. جسٹ امیجن 2021 رائٹ 2021 اور ادھر 2 لاکھ بھی نہیں. اور یہ دعوے کیا کرتے ہیں ہم 20 کروڑ ہیں، پھیل گئی احمدیت، جبکہ یہ 20 لاکھ بھی نہیں. اور عالم ان کا یہ ہے کہ ان کی نوجوان نسل جو ہے وہ آدھے سے زائد ان سے ہاتھوں سے نکل چکی ہے ذہنی طور کے اوپر. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، مجبوراً ان کو آنا جانا پڑتا ہے، لڑکیوں کو یہ وہ کرنا پڑتا ہے. یہ امپریس نہیں ہے. میں بالکل ان کے کانٹیکٹ میں بچوں کے ساتھ، ان کے جو صحابہ کی فیملیز ہیں ان کے ساتھ ہم ان کانٹیکٹ ود ہیں. ان کے عہدے دار جو ہیں بڑے بڑے، ان کے مطلب I don't want to further go in detail کیونکہ پھر یہ پہنچ جاتے ہیں. میرے خیال سے صحابی سے بہتر ہے کہ اگر ہم خرابی یا خرابہ کہہ لیں. وہ میرے خیال سے صحابہ کی جگہ ان کے جو مرزا صاحب کے جو خرابہ تھے. پیچھے کیوں اور تم میری دادی کے پیچھے پڑے ہوئے. مجھے میسج آیا شیخ صاحب اور فاروق بھائی کیونکہ ہماری ٹیم سے ریلیٹڈ ہے، تو انہوں نے جناب میسج کیا اور مجھے کہنے لگے کہ یا کیا قادیانیوں کو کافر کہنا ضروری ہے؟ آپ نے کہا جی شیخ صاحب نے ایک بات کی تھی، آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں شیخ صاحب بہرحال کافر تو ہم کہیں گے نا، تو کیا کافر غیر مسلم کہہ لیں؟ کافر کیوں کہتے ہیں؟ غیر مسلم کہہ لیں. ان کا یہ جواب تھا کہ یعنی مویا نہیں آکڑے ہے. اچھا تو وہ اس طرح کر کے مثال دیا. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھیں، کہتے ہیں یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے، یہ بڑا ہارش ورڈ ہے کافر کہنا. آپ جب کسی کو کافر کہتے ہیں تو وہ لوگ تو وہ خود بھی احمدی تھا، کہتا ہے ہم لوگ تو بڑی شدت سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. میں ایک سمپل اس کو بات بتاتا ہوں. دیکھو کافر ورڈ جو ہے یہ نفرت یا تعصب کی بنیاد کے اوپر قرآن نے نہیں کم از کم بولا. ہاں اگر کوئی مذہبی، کوئی مسلمان، کوئی اسلامی معاشرہ اگر کوئی اس کا ریئیکشن پیش کرتا ہے تو یہ ان کے اپنے جذبات ہو سکتے ہیں. اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یاد رکھیں. اسلام نے صرف ایک میدان کے اندر کفار سے شدت کے ساتھ جو ہے نا وہ غضب اور غصے کا کہا ہے، شدہ علی الکفار، وہ ہے میدان جنگ. میدان جنگ
मैदान जंग के अंदर कोई भी हो, आप जंग लड़ ही नहीं सकते जब तक। बार इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, वापस आए। तो काफिर जब कुरान कहता है, कुरान इल्मी और उसूली और नजरियाती बुनियाद के ऊपर कहता है, याद रखें इस्लाम चाहता है कि चीजें वाज़ेह हों, क्लियर हों। इस्लाम गड़बड़ नहीं चाहता। सिबगतल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह का रंग, और बताओ अल्लाह के रंग से बेहतर कौन सा रंग है? ठीक है, वमन, जो शख्स, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दा इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, उस शख्स से बेहतर बात किसकी है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और कहे मैं तो मुसलमान हूँ। ठीक है, अल्लाह नेक अमल भी करे। मकसद कहने का ये है, इस्लाम अपने उसूल में, अपने नजरिए में खत और डिफरेंशिएट करता है। उस एतबार से आपको काफिर कहा जाता है। इसका मतलब, अच्छा वो और कैसे ना, मुझे उन्होंने थोड़ी सी एनालॉजीज बनाकर दी शेख साहब। कहते हैं आप कादियानी को कैसे दावत देंगे? काफिर भाई, हमें आपसे ये इख्तलाफ है। काफिर भाई जरा बात सुनना, हमें कभी देखा ये इतना जो तकल्लुफ और ओवर एक्टिंग उस बंदे ने की है, हमें कभी इस प्रोग्राम में यहाँ ज़ैतून एफएम के ऊपर कभी देखा है हमें इतना तकल्लुफ करना पड़े और इतनी मुशक्कत काटनी पड़े किसी कादियानी? मैं तो अहमदी भाई कहता हूँ, मुझ पे फतवे भी लगते हैं, मैं फिर भी कादियानी भाई कहता हूँ। भाई मेरे भाई हो आप लोग यार, मुझे इख्तलाफ है, मैं आपको काफिर समझता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ मैं काफिर समझता हूँ, मेरा नजरियाती इख्तलाफ है आपसे। कैसे समझता हूँ? उस कादियानी को सिर्फ ये नुक्ता बयान करना जरूरी था। क्यों मैं कादियानी समझता हूँ? मुझे एक कादियानी मुरब्बी ने एक दफा बड़ा जोर शोर से मुसलमान की डेफिनेशन करे। मैंने कहा मुझे ये बताओ, आप जब मुझे कहते हो कि मैं आपको काफिर क्यों कहता हूँ, क्या आप मुझे काफिर नहीं समझते? उसको ये था कि जरा सच्ची सी बात हो रही है। कहने लगा मैं नहीं समझ। मैंने कहा इसका मतलब है आप अपने लिटरेचर को नहीं पढ़ते। ये देखो अनवार खिलाफत मिर्जा बशीरुद्दीन मियाँ महमूद अहमद जो खलीफा सानी है, उन्होंने लिखा है कि हम पर फर्ज है कि हम किसी गैर अहमदी को मुसलमान ना समझें। ये लिखा हुआ है, और ना उसके पीछे नमाजें पढ़ें। आप कैसे मुझे मुसलमान समझते हैं? अगर आप मुझे मुसलमान समझते हैं, दूसरे लफ्जों के अंदर आप मिर्जा साहब को झूठा समझते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। ठीक है, तो बस इतनी मेरी गुजारिश थी इस चीज पर कि ये जो सहाबी, ये टर्म्स हैं, ये सारी चीजें हैं, हम इनको जरा तफन्नुन और जरा लाइटर नोट पर बात कर रहे हैं, कोई इतना कोई शिद्दत नहीं। थैंक यू आमिर। रब्वा की पॉपुलेशन के अंदर 50% से ऊपर जो पॉपुलेशन है वो ख़वातीन हैं जिनके मर्द हाजिर नहीं हैं, और बच्चियां और ख़वातीन अकेली होती हैं। और वहाँ पे ये जो मुरब्बियान हैं, ये चूँकि तकरीबन कोई 22-23 साल की उम्र में एक बच्चा जो है वो मुरब्बी बन जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की उम्र में, तो उनके यहाँ बड़ा कॉमन है कि वो विज़िट करते हैं ऐसे घरों के अंदर और ऐसी बच्चियों और ख़वातीन के ऊपर, और उनका आना जाना होता है, और इस वजह से इस तरह के मामलात बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ या ख़वातीन के साथ पेश आते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये बात दुरुस्त है, ऐसा है, या ये सिर्फ एक ऐसी ही खबर है? ओह मेरे खुदा। नवीद साहब, पहले तो ये मेरे दो जो साथी हैं और इस चैनल के करता धरता जो हैं, अब मुझे ये बताइए, आपने एक ऐसा सवाल और पब्लिकली आप इसको कर दिया है कि अगर मैं इसकी नफी करूं तो आप जिस खातून का जो हवाला दे रहे हैं वो गलत हो जाएगी, और अगर मैं हाँ करूं तो सिर्फ इस चक्कर में कि चूंकि हम भी अहमदियों के बारे में बात करते हैं तो फिर मैं दयानतदारी को छुपा जाऊंगा, मतलब सच्चाई से काम नहीं लूंगा। मतलब आपने मुझे एक ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया है जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपसे अर्ज कर दूं, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां तक इस अहमदिया कल्ट के निज़ाम और तरीक़ाकार का ताल्लुक है, किसी मुरब्बी का कोई काम नहीं है किसी के घर में जाना। ये उनके किसी क़वाइद ज़वाबित में, किसी ऐसी चीज़ में इसका ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। अगर कोई अपनी ज़ाती हैसियत में अपने किसी रिश्तेदारों में, जैसे आम आप आते जाते हैं उस तरह मिलते हैं, और वो मुरब्बी है और वो जमात का उहदेदार है और वो फलान, जैसे हमारे पुलिस वाले हैं अपने घरों में जाते हैं, किसी दोस्त के घरों में जाते हैं तो वो रहते तो पुलिस वाले ही हैं ना, लेकिन कि वो एक बाकायदा तौर पे यूनिफॉर्म पहन के और इस तरह से डंडा हाथ में लेके दाखिल हों कि मैं आया हूँ, तो ऐसी कोई चीज़ इनके अंदर मुरब्बियों का किसी के घरों में जाना नहीं है। जहां तक आपने अपनी
ابتدا میں کہا کہ 50% جو اس خاتون نے کہا، تو یہ ایک وقت کی بات تھی جو بہت پہلے، کہ جب ربوہ سے جو مبلغین تھے وہ باہر ہوتے تھے تو ان کے بیوی بچے گھروں پہ اکیلے ہوتے تھے، اور اس وقت چونکہ تقریباً وہی لوگ ربوہ کے مکین تھے جو مطلب زیادہ تر مبلغین تھے یا جماعت کے کام کرنے والے تھے. کہ جیسے آبادی بڑھتی چلی گئی ہے تو سلسلہ کچھ اور ہوتا چلا گیا. یہ اب مجھے نہیں پتا وہ کس سینس میں بات کر رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں کیا نہیں. اب یہ معاملہ اٹھائے گا کہ بھئی میں ان کو غلط کہہ رہا ہوں یا میں یہ چیز کر رہا ہوں. میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے. آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ جماعت کا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ مربی جو ہے وہ لوگوں کے گھر میں جائے گا. I don't know کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے پایا ہوں یا نہیں، لیکن حقیقت میں ان کا کہنا مور اسپیسیفک یہ تھا کہ جب کسی خاتون کا یا ان کا کوئی ہسبینڈ یا کوئی چلا جاتا ہے اور یہ ان لوگوں کے علم میں آتا ہے کہ یہ خاتون اکیلی ہے یا یہ بچی اکیلی ہے تو وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی لبے لباب یہ تھا بات کا. دیکھیں پھر وہی بات ہے نویس صاحب، ایک کامن سینس کی بات ہے ٹو بی آنیسٹ ود یو، کہ ہر انسان صبح گھر سے نکلتا ہے روزگار کے لیے تو گھر تو پیچھے خالی ہوتا ہے نا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ انتظار کرے کہ چلا جائے اور میں اپنے وقت کو دے کے کروں. تو جانے والے کا تو یہ ہے کہ جو لوگ، پہلی چیز تو ہے کہ مربی ایسی چیز ہے ہی نہیں. مربی کا مسئلہ یہ ہے، میں آپ سے عرض کر دوں کہ ربوہ کے اندر ان کا مدرسہ ہے جسے جامعہ احمدیہ کہتے ہیں. اس میں سے یہ جس طرح آپ مسلمانوں کے دوسرے مطلب مدرسوں سے عالم بن کے نکلتے ہیں، اسی طرح ان کے مدرسہ سے جامعہ سے وہ پڑھ کے مربی بن کے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے اور وہ ربوہ میں نہیں رہتے. وہ جہاں جہاں پہ ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے وہ ان شہروں میں قصبوں میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جماعت کا وہاں پہ باقاعدہ طور پہ یہ لگا لیں کہ اس کو اسلام آباد کہہ لیں کہ ایک منسٹری ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ مختلف ان کے محکمے ہیں اور ان کے اندر وہ لوگ کام کر رہے ہیں، زیادہ تر وہ لوگ ہیں. ٹھیک. اب جو چلا جائے گا مطلب ایک گھر میں سے مثال کے طور پہ بچہ بنا ہے لڑکا مربی اور وہ چلا گیا، پیچھے اس کی ماں باپ بہن بھائی ہیں، اور اگر وہ شادی شدہ تھا اور بیوی پیچھے ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ربوہ کا رہائشی تھا یا کسی اور شہر کا. سو وہاں پہ یہ چیز کے لیے ان کی نظر رکھنی، مربی تو مطلب تو کہ کوئی نہیں بنتی کہ مربی وہاں پہ ہوں. مربی سوائے اس کے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ وہاں پہ اور کوئی چیز نہیں ہے. میری ٹھیک شیخ صاحب، مطلب یہ ہے کہ آفیشلی جو ہے ان کے کسی ڈیکورم کے تحت یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے جائیں، لیکن ان آفیشلی کوئی بھی اگر وہ جانا چاہے تو وہ اس طرح کر سکتا ہے. میں بھی اجازت، یہی وہ قصے اور واقعات اور حقائق ہیں جن کو سامنے رکھ کر میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ میری نظر میں کردار، اخلاق اور اپنے مفادات کے اعتبار سے مربی اور مولوی ایک ہی صف کے اندر ہے. یاد رکھیں، مربی اور مولوی، علماء نہیں. ٹھیک ہے، علماء نہیں، علماء از سم تھنگ ایلس جس کا قرآن اور حدیث نے ذکر کیا. مولوی اور مربی، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مولویوں اور مربیوں سے اپنا کھیڑا چھڑوائیں، خالصتاً قرآن و سنت کی دعوت کی طرف رجوع کریں، اور اس کے لیے کوئی ڈاکٹر، پروفیسر، علامہ بننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی پتہ چلتی ہے تو اس کی آپ نے تفسیر، تعبیر اور اس پر عمل کرنا ہے. بہت شکریہ. چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنی اس دیانتدارانہ پالیسی سے نہیں ہٹ سکتے کہ اگر ان کے اوپر کوئی غلط الزام آ رہا ہے یا غلط بات منسوخ کی جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم احمدیت کے بارے میں کر رہے ہیں تو ہم ہر چیز کی ہاں کرتے جائیں گے. جو حقیقت ہمارے علم میں ہے ہم وہ حقیقت سامنے رکھیں گے. جو غلط ہے غلط ہے، جو صحیح ہے وہ. ٹھیک، عامر بھائی نے بات کی تو اس کے اندر ذکر کیا مخلص احمدی. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، یہ جس بندے کے بارے میں آج ہم بات کریں، یہ سعید شاہ جس نے یہ گھنونی حرکت کی یہ 4 سال کی بچی کے ساتھ، یہ اس کے بارے میں بھی سننے میں آیا ہے کہ بڑا مخلص احمدی تھا جماعت کا. یہ اتنا مخلص تھا کہ یہ مسجد کو کھولتا تھا، مسجد صاف کرتا تھا، یہ وہ ہر وقت مطلب بڑا پرہیزگار، نمازی بظاہر. مطلب اس کا یہ سارے سلسلے اس کے بارے میں جو لوگوں کی طرف سے، احمدیوں کی طرف سے، کہ مطلب انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر، اچھا میجورٹی کے تو اکثریت کے علم میں تو تھا
کیونکہ یہ لندن کی بات ہے تو ان کے ذہنوں میں تھا، تو وہ کہہ رہے ہاں یہ تو پرانا واقعہ ہے، یہ تو فلاں 2-4 سال ہو گئے ہیں، اسے سزا ہو گئی ہوئی ہے، مطلب اس طرح کی. لیکن جن لوگوں کو باہر ہوتے ہیں نا کہ دوسرے شہروں کے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ لندن سے باہر ہے، برمنگھم یہ وہ دوسری جگہ پہ، تو انہوں نے مطلب جو بات کی ہے کہ بھائی یہ چیز جو ہے اتنا عرصہ اور ایسے یہ چلنا، یہ شخص مطلب وہ عہدے کے لحاظ سے یا ایک مخلص جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے جو ان کے بارے میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہماری نظروں میں بھی لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم واقف اس چیز سے کہ یہ شخص جو تھا بڑا خدمت گزار اور وہ یہ چیز تھی. لیکن بات پھر وہی جس کی طرف عامر نے اشارہ کیا تھا، اصل میں انسان کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، یہ ایک چیز ہے جس کو آج میڈیکل جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ انجیکشنز لگا کے ان کی اس جنسی خواہش کو ختم کیا جاتا ہے، یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، یہ چیزیں چلتی ہیں. یا پھر ان کے ساتھ بچپن میں کوئی ایسی واقعات، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو چکا ہو تو انسان کے اندر یہ خواہشات ابھرتی رہتی ہیں. یعنی یہ اس کے اوپر یہ کم از کم یہ وہ پرانا رونا نہیں رو سکتے کہ وہ جی جماعت بڑھ رہی تھی تو بس بھیڑ میں کہیں کوئی ایک بندہ آ گیا تو وہ مخلص نہیں تھا، تو وہ کوئی اتنا پرومیننٹ نہیں تھا، عہدے دار تھا باقاعدہ اور مخلص تھا، رائٹ؟ یا اوکے جی. زیادہ تر مسئلہ جو ہے ٹو بی آنیسٹ لوگوں نے جو بات کیا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو واقعات اپنے ہیں اگر ہم ذرا سا بھی کریں تو دوسرے کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ جی یہ آپ کو کس نے بتایا ہے، کون ہے، کیونکہ ہم لوگ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا وہ پھر یہ چیز جیسے فیملی کے اندر یا جماعت کے اندر پھیل جاتی ہے وہ چیز، تو اس لیے میں نے اس چیز کو اسی کے اندر سمیٹ دیا ہے کہ وہ جو 80% والا ہے نا کہ بھی ہائیک کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو اشارتاً ایک چیز دی ہے کہ وہ پروفیسر صاحب یہاں ہمارے کینیڈا کے ہیں، بڑے مشہور شاعر ہیں، بڑے مطلب وہ باقاعدہ طور پہ ان کے جو باپ تھے، ان کے جو بھائی یہاں کے مطلب کینیڈا کے نیشنل امیر رہ چکے ہیں، مطلب اس سے فوری طور پہ یہ جو کینیڈین سننے والے یا دوسرے وہ فوراً پہچان جائیں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، کیا ہے کیا نہیں ہے. اور وہ شخص جو ہے، بلکہ یہ رفیق صاحب نے جنہوں نے مسرور صاحب کے بارے میں بات کی، میرا خیال انہوں نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنی کسی ویڈیو میں باقاعدہ مینشن بھی کیا ہوا ہے ان کو. مطلب یہ یار یہ اتنا کچھ فیڈ بیک ہے نا اس کے اوپر، ٹو بی آنیسٹ میں کسی کو یہ چیز نہیں، اب لوگوں کے بال سفید ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بچپن کے ان کے ساتھ یہ واقعات یہ ہر جگہ پہ، یہ لوگ صرف جماعت والے اپنی طرف سے یہ اتنے پاک صاف دودھ کے نہائے ہوئے بنتے ہیں، یہ یہاں اسی خطے کی، اسی پلانٹ کی یہ سوسائٹی ہیں، یہ لوگ ہیں، ان کے اندر ہر کوئی چیز پائی جاتی ہے جو دوسرے انسانوں میں پائی جاتی ہے. ان کو اپنا یہ جو ایک انہوں نے خول اپنے اوپر جو چڑھا رکھا ہے اسے اتارنا ہوگا، اور اگر نہیں اتاریں گے تو یہ خود مطلب مصیبت میں جائیں گے، یہ خود ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اس سے پہلے کہ یہ اس ذلت کی موت مریں، ان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، مسرور میاں کو یا ان کے اپنے عہدیداروں کو سوچ لینی چاہیے. they should bring this issue in their own meetings.